بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ناظرین آپ کو خبر دیں کہ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی. صدر دھماکے کا مرکزی ملزم ساتھی سمیت مارا گیا جبکہ 2 فرار ہو گئے. ہلاک ملزمان سے اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کر لیا گیا. انچارج سی ٹی ڈی مظہر مشپانی کا کہنا ہے بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا ہے. ہلاک دہشت گردوں کا تعلق قلعدم علیحدگی پسند تنظیم سے ہے. ہلاک دہشت گردوں کی شناخت اللہ ڈنو اور نواب کے ناموں سے ہوئی. یہ 2 دہشت گرد جو ابھی ڈاکٹر نے ہلاکت کی تصدیق کی ہے، اس میں ایک ہے اللہ ڈنو اور دوسرا ہے نواب. ان کے جو قبضے سے ایک بیگ ملا ہے، اس کے اندر ڈائنامائٹ اسٹک، ریموٹ کنٹرول، ایک ریسیور ڈیوائس اور ڈیٹونیٹرز اور 2 ٹی ٹی پسٹلز جن سے برآمد ہوئی ہیں. اور مزید یہ کہ ان کی جو مزید جو تفصیلات ہیں وہ ہم حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل دن میں یا کل شام اس کے باضابطہ طور پر اس کی پریس ریلیز ہم جاری کریں گے. مواصلات جو بھی ہو سکتا ہے صدر کے دھماکے میں بالکل جو میں ویلکم بیک. ناظرین آپ کو بتائیں کہ قبل از وقت انتخابات نہیں ہوں گے. حکومت اگست 2023 تک اپنی مدت پوری کرے گی اور وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اتحادیوں کا فیصلہ معیشت کے استحکام کے لیے فوری اقدامات کرے. مشکل فیصلے لیے جائیں. ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وزیر اعظم کو یقین دلا دیا. شہباز شریف کو مشورہ دیا معیشت کی بہتری کے لیے IMF پروگرام کو فوری حتمی شکل دی جائے. تباہال معیشت کو بحال کرنا ناگزیر ہے. اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی مشاورت کی گئی. پنجاب میں ممکنہ سیاسی بحران سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر بات چیت کی گئی. حکومت مدت پوری کرے گی. معیشت کے استحکام کے لیے فوری اقدامات کریں. مشکل فیصلے لیے جائیں. ہر فیصلے میں ساتھ کھڑے ہوں گے. اتحادیوں کی وزیر اعظم کو یقین دہانی. شہباز شریف کو مشورہ دیا معیشت کی بہتری کے لیے IMF پروگرام کو فوری حتمی شکل دی جائے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادیوں کے اجلاس میں اہم فیصلے. تباہال معیشت کو بحال کرنا ناگزیر ہے. قبل از وقت انتخابات نہیں کرائے جا سکتے. آئندہ الیکشن کے لیے انتخابی اصلاحات کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے گا. عمران خان کی 4 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے لائی جائے. اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی مشاورت کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے الگ الگ ملاقات کی. پنجاب میں ممکنہ سیاسی بحران سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر بھی بات چیت کی گئی. اجلاس میں سابق صدر آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر شریک ہوئے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن سے ویڈیو لنک سے اجلاس میں شرکت کی. منحرف اراکین تاحیات نااہلی سے بچ گئے. منحرف اراکین کی نااہلی کی مدت کو پارلیمنٹ خود تعین کرے گی. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی ہے. ریفرنس میں تاحیات نااہلی سے متعلق پوچھا گیا سوال واپس بھیج دیا. منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 63 اکیلا پڑھا نہیں جا سکتا. سیاسی جماعتوں میں استحکام لازم ہے. انحراف کیسز ہیں. سپریم کورٹ کی رائے. ججز نے 3 سوالوں کا جواب دیا. 4تھا سوال صدر کو بھیج دیا. PTI کی درخواستیں خارج کیس نپٹا دیا. آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح. سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دے دی. پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے والے اراکین کی نااہلی کی مدت کا تعین پارلیمنٹ کرے. سپریم کورٹ کی اکثریتی رائے. اکثریتی رائے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دینے والے اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. سیاسی جماعتوں کے لیے اراکین کا منحرف ہو جانا کینسر کی حیثیت رکھتا ہے. سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ منحرف اراکین کی نااہلی کے لیے قانون سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے. سپریم کورٹ نے مستقبل میں اراکین کا انحراف روکنے کا سوال صدر مملکت کو واپس بھجوا دیا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس کی سماعت کی. فیصلہ 2 کے مقابلے میں 3 کے تناسب سے سنایا گیا. صدر مملکت عارف علوی نے 21 مارچ کو آرٹیکل 63A کے آئینی نقطے کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی تھی. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ حزیب عباسی، نیو نیوز، اسلام آباد.
सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो राय नहीं हो सकती बल्कि इसकी हैसियत फैसले की है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहते हैं आला अदालत ने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ अहम कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज हल दिया है ये पहले दे देती तो बहुत बेहतर होता। फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो चुकी। फैसले का मतलब है पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के अंदर एक हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सबसे बड़ा अगर कोई कदम उठाया है तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पीटीआई का मौक़िफ़ था वो तस्लीम कर लिया है और कहा है कि जो लोटे हैं या जो मुनहरिफ अरकान हैं वो वोट नहीं डाल सकते, उनका वोट काउंट नहीं होगा। इसकी जो हैसियत है वो फैसले की है और ये बाइंडिंग है। वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब हमारे क्राइम मिनिस्टर और सूबाई हुकूमत में हमजा शरीफ दोनों आज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। दोनों हुकूमतें अमली तौर के ऊपर आज ख़त्म हो गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज ही शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। सदर ममलिकत से मैं दरख्वास्त करता हूँ इस असम्बली में किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है, असम्बली को तोड़ दें और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब हैं और रहेंगे। पंजाब हुकूमत से मुतालिक फैसला इलेक्शन कमीशन ने देना है। नून लीग पंजाब के तर्जुमान अता तारड़ का रद्द-ए-अमल कहा, पंजाब में हुकूमत मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। सदर मुमलिकत गवर्नर की तैनाती के लिए आइनी तौर पर पाबंद है। उम्मीद है गवर्नर पंजाब की तैनाती जल्द हो जाएगी। कल भी मुशावरत हुई, सदर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और वो एडवाइजरी ओपिनियन है। हमजा शहबाज शरीफ साहब 100% वज़ीर आला पंजाब हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। पंजाब में हुकूमत मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। जो भी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से फैसला आएगा वो इलेक्शन कमीशन ने अब देना है। इस वक्त पंजाब में गवर्नर कोई नहीं है। सदर मुमलिकत पाबंद हैं, आइन के पाबंद हैं, नया गवर्नर लगाने से कासिर हैं। जो सदर मुमलिकत इनहराफ कर रहे हैं जिनको इंशाल्लाह महंगा पड़ेगा। हमारे हिसाब से 1 जून को बलीगो रहमान साहब ऑटोमेटिकली गवर्नर बन जाएंगे। विफाक में मुनहरिफ अरकान ने वोट कास्ट ही नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पंजाब पर असर पड़ेगा। अगर मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा तो पंजाब में नए इंतखाबात कराने पड़ेंगे। माहिर कानून सलमान अकबर राजा कहते हैं कि पंजाब के मुनहरिफ अरकान का मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। हमें अभी इलेक्शन कमीशन के फैसले की तरफ देखना होगा। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू में माहिर कानून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी शख्स अपनी पार्टी के बरखिलाफ वोट नहीं करेगा। मरकज पे फिलफौर कोई असर पड़ेगा क्योंकि मरकज में मियां शहबाज की जो बतौर वजीर आजम जो मुंतखाब हुआ था उसमें किसी मुनहरिफ रुकन का वोट शामिल नहीं। पंजाब हुकूमत पर बिल्कुल पड़ सकता है और गालिबन पड़ेगा। तो यही सबसे अहम इसका जो फौरी असर है वो यही है। अगर ये कहा जाए कि जो वोट पड़े हमजा शहबाज साहब को वो तमाम ज़ायल हो गए, उनका शुमार नहीं होगा तो फिर वो मुंतखब नहीं हुए। उस सूरत में ये सूरत सामने आएगी कि नया इलेक्शन कराना पड़ेगा पंजाब असेंबली में चीफ मिनिस्टर के लिए। ये अदालत में भी जाया जा सकता है। अदालत भी इस हवाले से कोई हुक्म दे सकती है हमजा शहबाज को कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो उस सूरत में भी वो अगर अक्सरियत का वोट नहीं ले सकते तो असेंबली को तहलील किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उसे सेकंड जज हाई कोर्ट नहीं देख सकता। माहिर कानून हामिद खान कहते हैं मुनहरिफ अरकान पर आर्टिकल 63 के तहत डिस्क्वालीफाई फैक्शन राइज होगी। ये नहीं कह सकते, इस पर बात हो सकती है। प्रोग्राम हरफ राज में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में 25 अरकान के वोट ख़त्म होने से हुकूमत कायम नहीं रह सकती। अब मामला वाज़ेह है, गवर्नर को नए सिरे से सूबाई असम्बली का इजलास तलब करना पड़ेगा। इत्तेहादी हुकूमत का बड़ा फैसला, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को हटाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब को हटाने के लिए आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। सेनेट या कौमी असम्बली का तरमीमी ऑर्डिनेंस में तोसी ना की तो चेयरमैन नैब फारिग हो जाएंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 की मुद्दत 2 जून को खत्म हो जाएगी। काबीना इजलास में वजीर आजम का नैब कानून पर इजहार ख्याल करने से गुरेज, कहा वो खुद इस कानून का शिकार रहे हैं इसलिए गुफ्तगू नहीं करेंगे। काबीना इजलास में शरीक तमाम वज़रा
ने नैब कानून में तरमीम की सिफारिश कर दी। नैब कानून में तरमीम पर मुतअद्दिद अरकान, काबीना और ब्यूरोक्रेसी फट पड़ी। ब्यूरोक्रेसी ने नैब कानून में तरमीम की खुलकर हिमायत की। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, इमरान खान ने अपने सियासी मुफादात को हक और बातिल की जंग बना दिया, अपनी सियासत को तबलीग करार दे दिया। इमरान खान ने कोहाट जलसे से खिताब के दौरान कहा वो सियासी तकरीर नहीं तबलीग करते हैं। रात 12 बजे अदालत लगने के ताना देने वाले इमरान खान आर्टिकल 63 पर सुप्रीम कोर्ट की राय पर खुशी से निहाल हो गए। कहा नोटों के खिलाफ फैसला देने पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक और दरखास्त है कि शरीफ फैमिली के करप्शन केसेस आप सुने, क्योंकि FIA को तबाह कर दिया और हमें किसी और पर एतमाद नहीं रहा। नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान ने जोर लगा कर हमारी हुकूमत गिरा दी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है नोटों के खिलाफ, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा, शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने, FIA को उन्होंने तबाह कर दिया। ये इंपोर्टेड हुकूमत के पीछे इनके टाइगर है और आगे समुंदर है, फंस गया। बड़ा शौक था चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को, बड़ी मेहनत की है वजीर आजम बनने के लिए। दो किस्म के जूते ये बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है, एक इसके सामने बूट आ जाए और वो भी फौजी बूट, और दूसरा अमेरिकी एम्बेसी से कोई बूट आ जाए वो भी बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। जिसकी पैसा बीमारी है, जिसका नाम जरदारी है, वो बड़ा मजे ले रहा है। वाकई जरदारी इन सब पे बाहरी है, नून लीग पे। अब इनके पास एक ही रास्ता है, अमेरिकियों को कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमें थोड़े डॉलर दो। अगर हमें तुमने डॉलर ना दिए तो इमरान खान फिर आ जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि फैसला करना कौन सा मुश्किल है, फैसला तो अभी इसी वक्त हो सकता है, मगर ये जानते हुए भी कि इमरान खान मुल्की मईशत को वेंटिलेटर पर फेंक गया, मुल्क को तबाह कर गया और पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाए बगैर मईशत दम तोड़ जाएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आवाम की तकलीफ के बारे में फिक्रमंद है। 30 मई तक बड़े फैसले आ जाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है इन लोगों ने 1.5 साल की गारंटी मांगी जो नहीं दी गई। आसिफ अली जरदारी नून लीग को घेर के वहाँ ले गया जहाँ उससे निकलना मुश्किल है। इंतखाबी इस्लाहात 1 हफ्ते में हो सकती हैं। अब तो उस वक्त फैसला हक में होगा जब अलवी इनसे कहेगा कि आप एतमाद का वोट लें, और MQM इधर बैठी होगी, बाप इधर बैठा होगा, और काफ लीग के 2 वोट जो है एक सेक्रेटरी उनके चीमा साहब और सालक साहब और 2 और, ये खेल खत्म हो गया। ये तय हो गया कि निगरान वजीर आजम आ रहा है। ये मैं खबर दे चुका हूँ, आप रिपीट कर रहा हूँ कि आइंदा 31 मई तक मैंने आपको कहा कि एक मईशतदान निगरान प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। और वो राना सनाउल्लाह जो कहता था 20 आदमी आएंगे, यहाँ 20 नहीं अब 30 लाख लोग आएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन कमीशन की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर दिया है और MQM ने दायर दरखास्त में बगैर इख्तियार बल्दियाती सेटअप को 90 रोज़ के लिए मुलतवी करने की इस्तदा भी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त MPS कंवर नवीद जमाल और साबिक मेयर डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैनों की जानब से तारिक मंसूर एडवोकेट के तवसत से दायर की। दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन के अरकान मुकम्मल नहीं, इसीलिए बल्दियाती इंतखाबात के बारे में फ़ैसले नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जानब से 29 अप्रैल को जारी करदा नोटिफिकेशन कलअदम और गैर आइनी करार दिया जाए। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है पंजाब असम्बली के आइन और कानून के तकद्दुस को पहली दफ़ा पामाल किया गया। असम्बली का तकद्दुस पामाल करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने असम्बली अफसरान से मीटिंग के दौरान कहा कि जिस असम्बली में दीन का काम हुआ हो, जहाँ ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया गया, उसी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये सब करवाने वाले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं। कौम के सामने उनका मकरू चेहरा आया हो चुका है। पार्लियामेंट की बालादस्ती बुरी तरह मुतासर हुई।
इमरान खान मुल्क का सबसे बड़ा कब्जा माफिया है। उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी के नाम पर 8000 केनाल अराजी अपने नाम मुंतकिल कराई। रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज अतातारड़ ने दावा किया कि इमरान खान के अहल खाना और दोस्त अहबाब के नाम नमल यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल हैं। जिन गरीब लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया, इन्हें मुआवजा भी नहीं दिया। कमिश्नर सरगोदा को लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस कैंसिल करने की हिदायत जारी की। इमरान खान ने उस्मान मुजदार, फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर के जरिए लूट मार की है। चमन में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर की दीवारों पर बैनर्स और पोस्टर्स लगना शुरू हो गए हैं। तफसीलात अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में देखिए। चमन में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। शहर की दीवारें, गलियां और सड़कें उम्मीदवारों के बैनर्स और पोस्टर से भर गए। जमात उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने चमन की पोलिंग स्कीम तब्दील करने, DRO और RO को एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन के इख्तियार देने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दे दिया। यहाँ का जो जलीद ऑफिसर है वो खुद बेबस है। उन्होंने हमें कॉल पर बताया है कि डिप्टी कमिश्नर जो है ना वो एक जानिबदार शख्स है। जब वो जानिबदार शख्स है और आरोज भी जानिबदार होंगे, जिसका भाई भतीजा इलेक्शन भी लड़ रहा हो, तो इसमें साफ इलेक्शन कैसे मुमकिन है। हमने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है। JUI-BAP के रहनुमाओं का कहना था कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो अगले मरहले का एहतजाज इससे भी सख्त होगा। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित चिकजई, न्यूज़ चमन। अहम खबर से आपको अपडेट करें। रावलाकोट के नवाही गांव में गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में नेशनल अवामी पार्टी आज़ाद कश्मीर असम्बली के उम्मीदवार साजिद सादिक भी शामिल हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। रावलाकोट के नवाही गांव में गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वालों में नेशनल अवामी पार्टी आज़ाद कश्मीर असम्बली के उम्मीदवार साजिद सादिक भी शामिल हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। शहर इक़्तिदार में हीट वेव के खदशे के पेश नज़र प्राइमरी क्लासेस तक स्कूल्स में छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जुड़वा शहरों में आंधी के बाद हल्की बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। मौसम के रंग निराले, कहीं आग बरसाता सूरज और लू के थपेड़े तो कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला लपेट में। जैकबाबाद, सिब्बी, शहीद बेनज़ीराबाद का दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। तुर्बत, लाड़काना, स्क्रंड, दादू, मोहनजोदारो और नूरपुर थल में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, दीर, चित्राल, एबटाबाद, बाजोड़, सवात, मानसरा, कोहिस्तान और पेशावर में भी बारिश की उम्मीद जाहिर कर दी। सुपीरियर कॉलेज शकरगढ़ की जानिब से स्पोर्ट गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। तफसीलात शकरगढ़ से राना अली रजा की इस रिपोर्ट में। सुपीरियर कॉलेज शकरगढ़ में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चों ने खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। तलबा ने दौड़, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सैक रेस, रस्साकशी और दीगर खेलों में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। पढ़ाई करना चाहते हैं और इसके साथ हमारा ये इस तरह की एक्टिविटीज का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज शकरगढ़ राना नदीम अनवर ने पोजीशन होल्डर्स बच्चों में इनामात तकसीम किए। मकसद इसका सिर्फ यही था कि स्टूडेंट्स को टीम स्पिरिट जो है वो सिखाना, टीम के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे जो है अगर आप हारते हैं जीतते हैं तो अपने टेम्पर को आपने कैसे मेंटेन रखना है। तलबा ने कॉलेज की जानिब से स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद को खूब सराहा। कैमरामैन सुफियान इलियास के साथ राना अली, नियो न्यूज़ शकरगढ़। नाज़रीन, आपको बताएं कि दुनिया भर में आज वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया जा रहा है। लाहौर के रहायशी मोहम्मद शाहिद ने अपने आबाओ अजदाद से विरसे में मिली चीज़ों की महफूज जगह पर उनको रखा हुआ है। और आपको ये भी बताएं कि बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें अब रखने का इनका मशगला है। लाहौर अजायब घर में आपने मुख्तलिफ अदवार की तहजीब और सकाफत पर मबनी फन पारे और नवादरात तो देखे होंगे, लेकिन हमाद मंजिल के मिनी म्यूजियम से ना आशना होंगे, जहां पर कदीम सिक्कों के साथ साथ मुख्तलिफ अक़लियतों के नायाब चीज़ें भी मौजूद हैं। आइए आज आपको इस मिनी म्यूजियम की सैर करवाते हैं। क्या में पाकिस्तान से कब्ल की करेंसी मिस्र, ईरान, सऊदिया अरब और दीगर ममालिक के कई सदियों पर मुहित सिक्कों का ढेर। लाहौर के मोहम्मद शाहिद के पास नायाब सिक्कों का खजाना मौजूद है। मोहम्मद शाहिद का कहना है वो गुज़िश्ता 30 साल से ये सिक्के जमा कर रहे हैं। मेरे पास काफ़ी पुराने सिक्के हैं, क्या में पाकिस्तान के पहले के भी और क्या में पाकिस्तान के बाद के भी।
اور ان میں کافی پرانا سکے جو ہیں وہ 1862 کا ہے جو تقریباً 2 صدیاں اور 32 سال پرانا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس منی میوزیم میں 200 سال قدیمی چاندی کے گلدان، پیالے، مہاراجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ، برطانوی دور کے لالٹین، ریلوے لیمپ اور ہندو مندر کے ناگ دیوتا کا مجسمہ بھی موجود ہے۔ محمد شاہد کہتے ہیں یہ نوادرات ان کی زندگی کا اہم اثاثہ ہیں۔ یہ لیمپ جو تھے پرانے دور میں ہمارے آباء و اجداد جب بجلی پیدا نہیں تھی، بجلی نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ لیمپ روشن کیے جاتے تھے مٹی کا تیل ڈال کر، اور یہ لالٹین جو ہے یہ برٹش دور کی لالٹین ہے جو ریلوے سگنل کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ محمد شاہد نے حماد منزل کی 1938 کی ہندوؤں کی لگی قدیم تختی بھی محفوظ کر رکھی ہے۔ کیمرامین فرمان علی کے ساتھ رضوانہ شیخ، نیوز لاہور۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز۔